السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولز۔ اپنی پسند کے اور دلچسپ ناول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ ایک پل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے رمشا خالد نے۔ آج اماں کو مرے 40واں دن تھا۔ صبح سے ہی گھر میں بھانت بھانت کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئی تھیں۔ خاموشی نے اپنا بستر لپیٹ لیا تھا۔ اماں بہت نیک اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ کوئی فقیر کبھی ان کے گھر سے خالی نہیں جاتا تھا۔ عقل مند اتنی کہ سارے میں سیانی بھی مشہور تھیں۔ لگائی بجھائی کی عادی نہیں تھیں۔ سب کو اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے کو ان سے بہتر ساما نہیں ملتا تھا۔ جو بھی ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان کی وفات کا سن کر لوگ جوک در جوک دوڑے چلے آئے تھے۔ وہ کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ آتے جاتے کوئی خاتون اسے گلے لگا کر تو کوئی سر پر ہاتھ پھیر کر صبر کی تلقین کرنا نہیں بھولتی تھی۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے خود پر ترس کھاتی نظریں دیکھ رہی تھی۔ ان 40 دنوں میں وہ اماں کو اتنا رو چکی تھی کہ اسے لگتا اس کے آنسوؤں کے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر دوپٹہ تان کر لیٹ گئی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی یوں ہی لیٹ جاتی۔ اماں کو ہول اٹھنے لگتے۔ وہ کبھی اس کے لیے چائے بنا لاتی، کبھی کسی اور کام کے بہانے اٹھا دیتی۔ وہ جب تک دوپٹہ نہ لپیٹتی اماں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی اور کچھ نہیں تو دوپٹہ کھینچ لیتی۔ پھر وہ ہوتی اور اماں وہ اندر کی ساری بھڑاس ان کے سامنے نکال لیتی۔ اماں غور سے سنتی رہتی تھیں۔ جب بول بول کر وہ تھک جاتی تھی تو اٹھ کر اسے گلے لگا لیتی۔ کیسی پریشانی، کہاں کا دکھ، ان کی محبت بھری باہوں میں سماتے ہی وہ سب بھول جاتی تھی۔ آہ اماں، اس کی آہ بے ساختہ تھی۔ اب دوپٹہ ہٹانے کوئی نہیں آئے گا، یہ سوچ کر دل پر گھوسا پڑا تھا۔ وہ گھبرا کر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ مہمان جا چکے تھے، ٹینٹ اتر چکا تھا، دریاں اور چاندنیاں سمیٹی جا چکی تھیں۔ خالی دیگیں سیڑھیوں کے پاس ایک دوسرے کے اوپر دھری تھیں۔ صحن میں جا بجا چاولوں کے دانے، روٹیوں کے ٹکڑے اور چھبڑی ہڈیاں بکھری تھیں۔ اماں کو گھر میں گرد کا ذرہ تک نظر آ جاتا تو وہ سارے کام پسے پش ڈال کر فوراً پائپ لگا لیتی، اور آج اس نے فرش پر انگلی گھسیٹ کر اٹھائی۔ پور پر مٹی کی تہ جم گئی۔ تھک کر ستون سے ٹیک لگا لی۔ دائیں دیوار نے زرد چنبیلی کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پھول توڑ توڑ کر ہوا میں اڑانے لگی۔ اماں کو پھول بس پودوں پر اچھے لگتے تھے، انہیں توڑنا سخت ناپسند تھا۔ یہ چنبیلی کا پودا تو ابا نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اماں اسے ہرا بھرا رکھنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی تھیں۔ روز اپنے ہاتھ سے پانی دیتی، صفائی کرتی، کھاد ڈالتی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ان کے بعد تو کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ پانی دینے کا خیال بھلا کیسے آتا؟ کم از کم مجھے تو خیال رکھنا چاہیے تھا،
इन 40 दिनों में उसे पहली बार अपने सिवा किसी और का ख्याल आया था। वो उठी और जाकर फवारा भर लाई। वो भी क्या करती, अम्मा की अचानक मौत ने उसके हवास सलब कर लिए थे। वो अच्छी भली थी कि अचानक बुखार ने आ लिया। मौसम बदल रहा था। मौसमी असरात गर्दानते हुए ज्यादा तवज्जो ना दी। वो डॉक्टर को दिखाने का कहती रह गई, मगर उन्होंने परवाह ना की। उनका बुखार बढ़ा तो थक कर उसने भैया को इत्तला कर दी। वो भांजी और बच्चों समेत दौड़े चले आए थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अम्मा शायद उन्हीं के इंतजार में थीं। उन सबको अपने पास रात देर तक बिठाकर बातें करती रहीं। एक एक का चेहरा अच्छी तरह आंखों में समोकर आंखों की प्यास बुझाई और सुबह हमेशा के लिए आंखें मूंद कर उनको बिलकता छोड़ गईं। कम से कम मेरा ख्याल तो किया होता अम्मा। खाली फवारा कदमों में रख कर वो बेदम सी सर हाथों में पकड़कर बैठ गई। किचन से खिटपिट की आवाजें आ रही थीं। मीज़ाब, चाय पियोगी? किचन के दरवाजे से भाभी ने झांका, मगर वो साकत बैठी रही। वो खामोशी से पलट गईं। उसने घुटनों में सर देकर आंखें मूंद लीं। तभी एक भारी हाथ उसके सर पर आ ठहरा। वो सीधी हो बैठी। भैया उसके करीब बैठकर कितनी ही देर उसका सर थपथपाते रहे। कहते हैं माँ का नेमुल बदल नहीं होता, सच कहते हैं। उनके लहजे में शिकस्तगी थी। अम्मा के गम में सारी जिंदगी भी आंसू बहाएं तो कम है, मगर क्या हमारे आंसू उन्हें वापस ला सकते हैं? एक पल को रुके नहीं ना, ये सिवाय उन्हें अजियत और तकलीफ के कुछ नहीं देंगे, और मरने वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाया करते। यही सोचकर मैंने अपने आंसू पोंछे हैं। बेटा, तुम भी अपनी आंखों में अब इन्हें जगह मत देना। वो उसकी सूजी हुई आंखों में देखकर बोले। भाभी चाय ले आईं। एक कप उसे और एक कप भैया को थमाकर चुपचाप अंदर चली गईं। दोनों खामोशी से चाय से निकलती भाप को तकते रहे और भाप कम होते होते खत्म हो गई। तब भैया चौंके। तुम्हें पता है अम्मा की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? ठंडी चाय का घूंट भरते उन्होंने पूछा। वो बुद्ध बनी बैठी रही, तुम्हें खुश देखना। तो फिर क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? वो शिकवा कुना हुई। पगली, ये उनके इख्तियार में थोड़ी था। अगर होता तो वो ऐसा कभी ना करती। लेकिन उनके लिए सदकाए जारिया बनना, कब्र में उन्हें सुकून पहुंचाना तो हमारे इख्तियार में है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? उन्होंने तस्दीक चाही। बात उसकी समझ में आने लगी थी। तवील सांस खारिज करते हुए अज़बात में सर हिलाने लगी। वो बहुत देर तक उसे समझाते रहे, तसल्ली देते हुए जिंदगी के हर मोड़ पर अपने साथ का यकीन बख्शते रहे थे। ये उनके समझाने का एजाज था कि रात गए जब वो सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी तो इन 40 दिनों में पहली बार उसके होंठों पर अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि अम्मा की मग़फ़िरत की दुआएं थीं। सर्कुलर रोड पर कायदे आज़म बाजार को छोड़कर थोड़ा आगे रिहायशी इलाके में सफ़ेद दरो दीवार और स्याह गेट की हामिल फारूक मंजिल थी। फारूक साहब उस कस्बे के वाहिद बॉयज़ कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल थे। सखावत उनका वस्त थी। दाएं हाथ से नेकी इस खूबी से करते थे कि बाएं हाथ तक को खबर नहीं होती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़े उमर फारूक और उनसे 15 साल छोटी मीज़ाब रहमत। मीज़ाब की पैदाइश से 1 साल पहले उन्हें अपनी शरीके हयात के हमरा हज की सादत नसीब हुई थी। हरम पाक में मीज़ाब रहमत से बहती रहमतों में सर तापा भीगते हुए
دونوں میاں بیوی نے بے ساختہ اپنے لیے رحمت کی دعا کی تھی جو اگلے سال پوری ہو گئی۔ سفید کمبل میں لپٹے گلابی پھول کو دیکھتے ہی فاروق صاحب نے اسے میزاب رحمت کا نام دے دیا تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اماں ابا بھیا اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ وقت آگے بڑھا۔ عمر فاروق کو فارغ التحصیل ہوتے ہی شاندار تعلیمی ریکارڈ کی بنا پر فوراً نوکری مل گئی۔ اماں تو تھی ہی اسی انتظار میں۔ فوراً ابا کے چچا زاد بھائی کی بیٹی بیاہ لائیں۔ ابا بھی شاید اسی انتظار میں تھے۔ پوتے پوتیوں کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد آنکھیں موند لیں۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ کئی دنوں تک گمسم رہی اور اب ابا کے جانے کے 7 سال بعد وہ بھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ بھابھی اور بھیا کی دلجوئی کے سبب وہ زندگی کی طرف لوٹ تو آئی تھی مگر شاید زندگی گزارنا بھول گئی تھی۔ گریجویشن کے پیپرز کے بعد رزلٹ کے انتظار میں اس نے 3 ماہ پہلے ہی قریبی اسکول جوائن کر لیا تھا مگر اب جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بچوں کے پیپرز قریب تھے۔ میڈم خود اسے بلانے آئیں تو اسے جانا پڑا اور کچھ نہیں تو کم از کم بچوں کے درمیان وقت تو کٹ ہی جاتا تھا۔ وہ اس وقت اسٹاف روم میں اکیلی بیٹھی تھی، کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ پیریڈ آف ہونے کی بیل بجتے ہی ٹیچرز نے اسٹاف روم کا رخ کیا۔ وہ حسب سابق سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس کا اگلا پیریڈ بھی فری تھا۔ مس سمرا اور مس ہنا کا بھی اگلا پیریڈ فری تھا۔ ان دونوں نے اس کے دائیں بائیں کرسیاں سنبھال لیں۔ سمرا کے ہاتھوں میں ٹیسٹ کی کاپیوں کا بنڈل تھا جبکہ ہنا فارغ تھی۔ اس نے میز پر پڑا اخبار اٹھا لیا۔ میزاب، بھابھی واپس نہیں گئی؟ ان کا کب تک ادھر رہنے کا ارادہ ہے؟ سمرا نے اچانک پوچھا۔ پتہ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ پھر کاپیوں پر جھک گئی۔ سمرا اس کی محلے دار تھی، اس لیے گھریلو حالات سے واقف تھی۔ کیوں میزاب، تمہارے بھیا بھابھی تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ قتل و غارت گری کی خبروں سے تنگ آ کر ہنا نے اخبار بے دلی سے میز پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ دراصل بھیا کی شہر میں نوکری ہے۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو بھابھی ادھر رہی تھیں، پھر اماں نے خود انہیں بھیا کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ انہیں وہاں اکیلے بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ اب تو ان کے 2 بچے بھی ہیں، دونوں ادھر زیر تعلیم ہیں۔ اس کے بار بار سوالوں سے بچنے کے لیے میزاب نے تفصیلی جواب دیا۔ اوہو، پھر تو چاہ کر بھی دوبارہ یہاں سیٹ نہیں ہو سکیں گے، یعنی تمہیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مجھے اب اپنا گھر بھی چھوڑنا ہوگا؟ تمہارے بھیا کا شہر میں ذاتی مکان ہے۔ ہنا باتوں کی شوقین تھی، اوپر سے اس وقت فارغ تھی، اس لیے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بھابھی کے چاچو ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پورشن کرائے پر لے رکھا ہے۔ اس نے آخری کاپی پر سائن کر کے اسے میز پر رکھا۔ یعنی اپنے سسرال میں رہتے ہیں؟ ہنا نے ہونٹ سکیڑے۔ میزاب کو اس کا انداز برا لگا تھا مگر تحمل سے بولی، ان کی مجبوری ہے، ان کی نوکری ہی ایسی ہے کہ انہیں کئی دنوں تک دوسرے شہروں میں دورے پر جانا ہوتا ہے۔ ایسے میں بھابھی اور بچوں کو پیچھے اکیلے بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم نے سنا نہیں ہنا، انہوں نے پورشن کرائے پر لے رکھا ہے۔ ویسے بھی ان کی مرضی، سسرال میں رہیں یا سول لائن میں۔ سمرا دانت پیس کر بولی، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ اسے ہنا کے فضول سوال زہر لگ رہے تھے مگر میزاب ان کی باتوں پر توجہ دیے بغیر پیشانی پر تفکر کی لاتعداد لکیریں سجائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ پھر گھر جا کے بھی ہمہ وقت اس کے ذہن میں اپنی رہائش کا مسئلہ چکراتا رہا۔ یہ تو ظاہر سی بات تھی، وہ اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور نہ بھابھی مستقل اس کے ساتھ رہ سکتی تھیں۔ بھیا تو جا چکے تھے، بچوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے بھابھی اس کے ساتھ رہ رہی تھیں۔
अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे। उसके बाद बहुत बड़ा सवालिया निशान उसके जहन में गूंजा। क्या मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा? नहीं, कभी नहीं। मैं कह दूंगी भैया से, मैं अकेली रह सकती हूँ। इन दरो दीवार से लिपटी अम्मा अब्बा की यादें मुझे सहारा देने को काफ़ी हैं। जिसने जाना है चला जाए, मैं हरगिज़ इस घर से दूर नहीं जाऊंगी। छत की कड़ियाँ गिनते गिनते वो रात देर तक खुद को तफल तसल्लियाँ देती नींद की आगोश में सिमट गई। अगले दिन स्कूल से लौटी तो भैया आए हुए थे। उनसे मिलकर वो अपने कमरे में आ गई। भैया और भाभी से उम्रों का फ़र्क इतना था कि वो चाहकर भी उनसे बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाती थी। नमाज के बाद वो हस्बे मामूल अम्मा के इसाले सवाब के लिए कुरान मजीद पढ़ रही थी जब उसे गुमान हुआ जैसे भैया ने कमरे में झांका हो। सिपारा मुकम्मल करके एहतराम से कुरान पाक शेल्फ में रखते हुए वो उनके कमरे में चली आई। दरवाजे का एक पट खुला था। सामने भाभी बेड पर कपड़े फैलाए उन्हें सलीके से तय करके बैग में रख रही थीं। भाभी ने पैकिंग भी शुरू कर दी और मुझे बताया तक नहीं। उसे झटका लगा था। आओ मिजाब, बाहर क्यों खड़ी हो? भाभी, भैया कहाँ हैं? उन्हें शायद मुझसे काम था। वो ज़रा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। वो मसरूफ़ सी बोली। पैकिंग की कोई तजवीज़ नहीं दी थी सो उसने भी नहीं पूछा। जवाब वो पहले से जानती थी, जिसे जानते हुए भी सुनने की हिम्मत वो खुद में नहीं पाती थी। इसलिए पलटकर बरामदे की सीढ़ियों पर आ बैठी। सहन में टीपू मोना को साइकिल चलाना सिखा रहा था। भैया ने भी कभी मुझे ऐसे ही साइकिल चलाना सिखाई थी, उससे भी ज़्यादा प्यार से। टीपू तो मोना को बहुत डांट रहा था। भोली भटकी मुस्कुराहट उसके होंठों के गोशों पर आ ठहरी थी जब भैया किसी अजनबी के साथ अंदर दाखिल हुए और उसे चाय का कहकर अजनबी को लिए ड्राइंग रूम में चले गए। थोड़ी ही देर में वो उस अजनबी को घर दिखाते फिर रहे थे। उसने बहुत बार सवालिया नज़रों से उन्हें देखा, मगर वो दानिस्ता उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहे थे। वो जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में चकरा रही थी। भैया इस घर को किराए पर देने का सोच भी कैसे सकते हैं? उसने खुद को तसल्ली दी थी। टीपू भैया का पैगाम लिए चला आया। उन्होंने उसे ऊपर टेरेस पर बुलाया था। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उसका दिल जैसे डूब डूब सा जाता था। ऊपर भैया रेलिंग पर मौजूद हाथ जमाए खला में किसी नादीदा नुक्ते की गहराइयों में खोए थे। भाभी करीब ही कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। उसे आता देखकर बाकी मांदा चाय एक घूंट में ख़त्म करके बर्तन समेटकर सीढ़ियाँ उतर गईं। आओ मिजाब, बैठो। गर्दन मोड़कर उसे बैठने का कहते हुए वो फिर से आसमान की वुसअतों में खो गए। वो छोटे छोटे कदम उठाती कुर्सी पर टिक गई। खामोशी का छोटा सा वक्फा दूर कहीं से भागता हुआ उनके दरमियान पल भर को सांस दुरुस्त करने बैठ गया। दिल की धड़कनें वाजे करती अजियतनाक खामोशी से उसे वहशत होने लगी। करीब था कि भाग जाती, मगर भैया के लफ्ज़ों ने उसे पत्थर कर दिया। मीराब, मैंने ये घर बेचने का फैसला किया है। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। भैया इस घर को किराए पर देने का सोच भी कैसे सकते हैं? उसने खुद को तसल्ली दी थी। टीपू भैया का पैगाम लिए चला आया। उन्होंने उसे ऊपर टेरेस पर बुलाया था। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उसका दिल जैसे डूब डूब सा जाता था। ऊपर भैया रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए खला में किसी नादीदा नुक्ते की गहराइयों में खोए थे। भाभी करीब ही
कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थीं। उसे आता देखकर बाकी मांदा चाय एक घूंट में खत्म करके बर्तन समेटकर सीढ़ियां उतर गईं। आओ मीज़ाब बैठो, गर्दन मोड़कर उसे बैठने का कहते हुए वो फिर से आसमान की वुसअतों में खो गए। वो छोटे छोटे कदम उठाती कुर्सी पर टिक गई। खामोशी का छोटा सा वक्फा दूर कहीं से भागता हुआ उनके दरमियान पल भर को सांस दुरुस्त करने बैठ गया। दिल की धड़कनें वाजे करती अजियतनाक खामोशी से उसे वहशत होने लगी। करीब था कि भाग जाती, मगर भैया के लफ्जों ने उसे पत्थर कर दिया। मीज़ाब, मैंने ये घर बेचने का फैसला किया है। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। देखो मीज़ाब, ईंट सीमेंट से बनी इमारतें घर नहीं होती, घर रिश्तों से बनते हैं। जब तक अम्मा अब्बा जिंदा थे ये एक घर था। उनके जाने के बाद ये एक मकान है, सिर्फ एक मकान, जिससे उनकी यादें ज़रूर जुड़ी हैं। मगर बेटा, यादों का मस्कन हमेशा दिल होता है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जहां हमारे दिल धड़केंगे, हर तरफ उनकी यादों की खुशबू फैलेगी। ये घर जितना तुम्हें अजीज है उतना मुझे भी है। ये फैसला आसान नहीं था, बहुत सोच समझकर मैंने फैसला किया है। वो अभी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भैया बहुत देर तक उसे समझाते रहे, दिलासे वादे तसल्लियां, मगर वो सुनसी मेज की सतह पर नजरें गाड़े बैठी रही। मुझे यकीन है मेरी प्यारी बहना को मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। बहुत देर समझाने के बाद वो मेज पर रखी फाइल को खोलकर उसकी गोद में रखते हुए मान से उसके सर पर हाथ रखकर बोले। वो जो अपना हक जताकर उनके फैसले को शिद्दत से रद्द करने का सोच रही थी, मशीनी अंदाज में उनकी बताई जगहों पर साइन करती चली गई। उसका गाल थपथपाते हुए लंबे लंबे डिग भरते नीचे चले गए, और वो जो समझती थी अम्मा को 40 दिन रोने के बाद उसके आंसुओं के सोते खुश्क हो गए हैं, मेज की सतह पर सर टिकाए फूट फूट कर रो रही थी। 3 घंटे की तवील ड्राइव के बाद गाड़ी ग्रीन लाइन की मुतवस्सित कोठी के सामने जा रुकी। भैया गेट खोलने के लिए उतरे। टीपू और मोना उनसे भी पहले अंदर भाग गए। छोटा सा ड्राइववे जिसके किनारे सफ़ेदे के दरख्त और एतराफ में 2 छोटे छोटे घास के कते थे, अबूर करके गाड़ी पोर्च में जा रुकी, जहां पहले से 2 गाड़ियां खड़ी थीं। भैया डिग्गी से बैग निकालने लगे। भाभी पर्स में से चाबियां तलाश कर रही थीं। नया ठिकाना। वो बाहर निकलकर ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए देखे वाले दरो दीवार का जायज़ा लेने लगी। ये अब्बा के चचाजाद भाइयों का घर था। दाएं बाएं और सामने 3 एतराफ में जालीदार बरामदे। दरअसल 3 अलग अलग पोर्शन थे, जिनके पीछे वसी सहन थे। सामने वाला पोर्शन भाभी के वालिद कासिम अंकल का था, जहां वो अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहाइश पजीर थे। भाभी उनकी इकलौती बेटी थी। दाईं तरफ आसिम अंकल का पोर्शन था। उनकी फैमिली मुख्तसर सी थी, एक बेटा अरमान और बेटी अमीना। बाईं तरफ वाला पोर्शन कभी अंकल हाशिम का होता था, जो अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम थे। तो भैया हाशिम अंकल का पोर्शन किराए पर लेकर रहने लगे थे। अंकल ने ख़राब मुल्की हालात के पेश नज़र अब मुस्तकिल बाहर सेट होने का फ़ैसला किया, तो यही पोर्शन उन्होंने फ़ारूक मंजिल बेचकर ख़रीद लिया था। अब ये पोर्शन भैया का था। मीज़ाब रुक क्यों गई, आओ ना।
अपने पोर्शन की जाली का कुंडा खोलती भाभी ने गुमसुम गाड़ी से टेक लगाए खड़ी मीज़ाब को आवाज़ दी। तवील सांस खारिज करते उनके पीछे जाते हुए उसे अपना आप कठपुतली की मानंद लगता था। वो गुम तो शुरू से थी, मगर यहाँ आकर तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। ये भरा पूरा घर था, सबके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे के पोर्शंस में आना जाना था। उसकी दिलजोई के ख्याल से कभी कोई आंटी तो कभी भाभी आती रहती थीं। उसे पास बिठाकर इधर उधर की बातें करती, अपने यहाँ आने को कहती, मगर उसका बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता था। वो बस चुपचाप उन्हें तके जाती या फिर पहरों कमरे में बंद बेमायने बातों पर कुर्ती रहती। यहाँ आने के दूसरे ही रोज़ भैया को दौरे पर बैरूने शहर जाना पड़ गया था। उसे लगा जैसे उन्हें उसकी परवाह नहीं, इसीलिए यहाँ लेकर आते ही दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर चले गए हैं। भाभी कोई काम कहती तो लगता उसे मुफ्त की नौकरानी समझने लगी हैं, अगर ना कहती तो लगता अज़ूए मुअत्तल का दर्जा दे रखा है। अब भी उस पर कनौतियत का दौरा पड़ा था। नीम तारीक कमरे में नादीदा नुक्ते पर नज़र जमाए, प्रागंदा सोचों की वजह से सर फटने लगा तो चप्पल घसीटती उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोला तो नज़र दरवाजे के दूसरी तरफ लगे आईने में अपने अक्स से उलझी। अम्मा के बाद वो शायद पहली बार अपना अक्स गौर से देख रही थी। क्या ये मैं हूँ? खुद को देखकर वो हैरान रह गई थी। जर्द होती रंगत, पपड़ी ज़दा होंठ, वीरान आँखें, उलझे बाल। हैरत से खुद को देखते हुए उसने दीवार पर सजी अपनी पिछली सालगिरह पर अम्मा के साथ खिंचवाई तस्वीर को देखा। दरमियाना कद, गुदास सरापा, गुलाबी माइल शफाफ रंगत, मोटी मोटी जगमगाती आँखें, कटावदार भरे भरे होंठ, सतवा नाक जो उसके चेहरे पर बहुत भली लगती थी। बाकी की कसर कमर तक आते घोर स्याह रेशमी बालों ने पूरी कर दी थी। वो अम्मा के पहलू में मशरिकी हुस्न का मुकम्मल नमूना बनी खड़ी थी। उसे याद था ये तस्वीर खिंचवाने से पहले अम्मा ने कितनी ही दुआएं पढ़कर उस पर फूंकी थीं। सदा यूं ही शादाब रहे मेरी बच्ची। उसने आंखें मूंदकर उनके बोसे की हिद्दत को अपने माथे पर महसूस किया। आंखें खोली तो अपना पसे मुर्दा सरापा सामने था। उसने कुछ सोचते हुए कदम वापस अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वार्डरोब से अच्छे से कपड़े निकाले। 1 घंटे के शावर ने उसे बहुत फ्रेश कर दिया था। तौलिए से बाल खुश्क करके थोड़े से कैचर में जकड़े और बाकी नीम गीले बालों को पीछे खुला छोड़ दिया। क्रीम लगाकर आंखों में स्याह डोरे डालने के बाद आईने में देखा, वहाँ पहले वाली मीज़ाब खड़ी थी। हाँ, मगर आंखों की चमक मफकूद थी। चेहरे की मलामत में सोगवारी रची थी। बाहर जाने से पहले उसने मुड़कर तस्वीर को देखा। अम्मा के चेहरे से छलकते सुकून ने दिल को इत्मीनान बख्शा था। अमीना और भाभी सफ़ेदे के दरख्तों के साए में कुर्सियों पर बैठी थीं। मेज़ पर चाय के बर्तन सजे थे। आओ ना मीज़ाब, रुक क्यों गई? अमीना ने आवाज़ लगाई। वो जो वापस पलटने को थी रुक गई। उन लोगों के पास आप फिर कभी बैठ जाइएगा। अभी हमारे साथ पार्क चलें, हमें आपको अपने दोस्तों से मिलवाना है। टीपू और मोना उसका हाथ पकड़कर इसरार करने लगे। वो भी तब्दीली चाहती थी, इसलिए आराम से चल पड़ी। फुटपाथ के किनारे सब्ज़ा ही सब्ज़ा, फूल ही फूल थे। हर घर की दीवार पर फूलों की बेलें सजी थीं। हर तरफ हरियाली थी। टीपू और मोना की बातें सुनते हुए वो इर्द गिर्द का तफसीली जायज़ा भी ले रही थी। पार्क 10 मिनट की वॉक पर था। शाम का वक्त था, इसलिए खूब चहल पहल थी। बच्चों ने अपने दोस्तों से उसका गायबाना तारुफ करवा रखा था, इसलिए वो उसे देखते ही पहचान गए। अपने साथ खेलने की ऑफ़र भी की, जिसे नरमी से टाल कर वो तालाब के किनारे गुलाबों की गुंज के पास
सफेद मरमर के बेंच पर आ बैठी। थोड़े से फासले पर शान से खड़े अमलताज की टहनियां हौले हौले हिल रही थीं। वो हवा में रची गुलाबों की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए तालाब के नीलगोन पानी पर तैरती बतखों की जोड़ी को देखने लगी। उनके पहलू में तैरते उनके बच्चे तो और भी प्यारे थे। उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ ठहरी। वो लड़की थी या गुलाब? ट्रैक पर मुखालिफ सम से दौड़कर आते हुए उसकी नज़र गुलाबों के कंच पर पड़ी तो कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कानों से हेडफोन निकालते हुए वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। उससे जरा फासले पर अमलताज के तने से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधकर दिलचस्पी से उसे देखने लगा। पुरशौक नजरों की तपिश महसूस करके वो चौंकी। सामने दराज कद गंदुमी रंगत शफाफ आंखों वाले नौजवान को महूवियत से अपनी तरफ देखता पाकर उसकी पेशानी पर बल और आंखों में नागवारी दर आई, जिसे देखकर वो खुशदिली से मुस्कुराया। हेलो, कैसी हैं आप? क्या पहचाना नहीं मुझे? उसकी आंखों में अजनबियत देखकर उसे हैरत ना हुई। मीज़ाब से आखिरी मुलाकात भी गालिबन 7-8 साल पहले हुई थी, मगर इसके बावजूद वो उसे पहचान गया था। मैं अरमान हूँ, अरमान आसिम। तो कहकर वो फौरन उठ गई और बस अरे अरे करता रह गया, मगर वो रुकी नहीं। उसकी पुरशौक नजरों ने घबराई उलझी गुलाब सी लड़की का दूर तक पीछा किया था। शाम का वक्त था। सफेदे के दरख्तों तले चहल पहल थी। एक तरफ मोना और टीपू अपने कजन के साथ खेल रहे थे, दूसरी तरफ कुर्सियों पर भाभी और अमीना बातें करते हुए चाय और समोसों के साथ लुत्फ अंदोज हो रही थीं। समोसे अमीना बतौर ख़ास अरमान की फरमाइश पर बना कर लाई थी। अरे वाह, मेरे बगैर ही शुरू हो गईं। वो शर्ट की आस्तीनें मोड़ता कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम अब वॉशरूम में नहाने के बजाय स्विमिंग शुरू कर दो, तो हम तो तुम्हारे इंतज़ार में सूखने से रहे। भाभी उसके लिए चाय निकालते हुए मुस्कुराईं। वो शावर लेने में घंटों लगाता था। मोना, यूं करो अपनी मीज़ाब फुप्पो को भी बुला लाओ। मम्मा, मैं गई थी अभी, मगर वो नहीं आई। वो कैच लेने के लिए भागते हुए बोली। मुझे तो सच्ची बात है, मीज़ाब की तरफ से परेशानी होने लगी है। शर्मीली तो पहले से थी, मगर इतनी तन्हाई पसंद तो कभी नहीं थी जितनी यहाँ आकर हो गई है। अब तो उससे खुद से बात करो तो जवाब दे देती है, वरना पहरों चुपचाप खलाओं में घूरती रहती है। अम्मा के जाने का बहुत असर लिया है उसने। मैंने उमर से भी बात की है, मगर उनके ख्याल में इतने बड़े सदमे से निकलने के लिए उसे तन्हाई और वक्त दरकार होगा, इसलिए कुछ अरसे उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। भाभी आहिस्ता आहिस्ता बता रही थीं। तुम क्या कहते हो साइकेट्रिस्ट साहब? उनकी बातें तवज्जो से सुनता वो चौंका। जहन में उदासी की रिदा ओढ़े खोई खोई गुलाब सी लड़की की छवि उभरी थी। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोग। कोई भी फर्द जो किसी बड़े सदमे से गुजरा हो, तन्हाई उसके लिए दलदल का काम देती है। उसे जितनी ज़्यादा तन्हाई मुयस्सर आती है, वो उस सदमे के ज़ेरे असर उतना ज़्यादा गम की ताह गहराइयों में डूबता चला जाता है, और गम का शदीद एहसास उस पर इतना हावी हो जाता है कि उसके शऊर और लाशऊर दोनों को मुतासिर करके उसकी कुव्वत इरादी को कमज़ोर कर देता है। ऐसे में मनफी सोचें और यासियत उसके जहन और दिल में पंजे गाड़ लेती हैं। वो ज़िंदगी की रौनकों से बेजार होता चला जाता है। पहले मरहले में डिप्रेशन का आर्जा लाहक होता है। अगर यही कैफियत मुस्तकिल रहे तो मरीज़ या तो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, या फिर ज़िंदगी से इतना बेजार हो जाता है कि ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाने से भी दरीग नहीं करता। वो बहुत प्रोफेशनल अंदाज में कह रहा था, अरमान, तुम्हारी बातों ने तो मुझे हौला दिया है।
भाभी की चाय रखे रखे ठंडी हो गई थी। आपी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मीज़ाब का मसला अभी गंभीर नहीं है। इसका सादा सा हल है कि जितना हो सके उसे मसरूफ़ रखें, ख्वाह काम में, बच्चों के साथ या जिस तरह भी, बस उसे तन्हा बैठने का मौका कम से कम दें। बाहर लेकर जाएं, बोलने पर मजबूर करें, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। उसने तसल्ली दी। कोई मेडिसिन वगैरह? नहीं, उसकी ये कैफियत सदमे के ज़ेरे असर है। वो बाकायदा नफ्सियाती मरीज़ा नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल उसे बाकायदा मेडिसिन की कोई ज़रूरत है। हाँ, मगर आप मुझे उसकी कंडीशन बताती रहिएगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं उसके लिए चंद सुकून आवर अद्वियात तजवीज़ करूँगा। उसका मोबाइल अचानक बजने लगा तो वो उठ गया। पीछे अमीना और भाभी के चेहरे पर तफक्कुरात का जाल बिखरा था। मीज़ाब, क्या कर रही हो? वो नाश्ते के बाद चाय का कप खाली हो चुका कप लिए लाउंज में बैठी थी। कुछ नहीं भाभी, फारिग हूँ। तो प्लीज़ यूँ करो, शादो आती होगी, उससे अपनी निगरानी में सफाई करवा लो। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, उन्होंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। सलाम बीबी। अभी उसका जिक्र हुआ था कि वो अपने मखसूस अंदाज में सलाम करती आ पहुंची। याद किया और हाजिर, शादो न हुई गोया। बेसाख्ता उमटते ख्याल ने उसके होठों पर मुस्कुराहट जगा दी। बीबी, एक बात कहूँ? शादो उसे गौर से देखती बोली। ज़रूर, आपकी स्मेल बड़ी अच्छी है। शादो अंग्रेज़ी बोलने की शौकीन थी। स्मेल? उसे झटका लगा। गड़बड़ाकर अपने साफ सुथरे सरापे को देखने लगी। मेरा मतलब है मुस्कुराहट, जिसे अंग्रेजी में स्मेल कहते हैं। उसे होंक देखकर वो वजाहत करने लगी। वैसे शक्ल से तो बड़ी पढ़ी लिखी लगती हैं, क्या अंग्रेजी नहीं आती? वो एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा नचाते हुए बोली। मीज़ाब बेसाख्ता खिलखिलाई। भाभी ने खुशगवार हैरत से किचन से झांक कर देखा और पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगी। जैसी अंग्रेज़ी तुम्हें आती है वैसी तो मुझे कतन नहीं आती। अच्छा, बाकी बातें बाद में, पहले काम कर लो। शाम को भाभी ने टीपू और मोना को पकड़कर उसके पास पढ़ने बिठा दिया। बच्चे भी खुश थे और उसका वक्त भी अच्छा गुजरा। फुप्पो, अब हम रोज़ आपसे पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल नहीं डांटती। मोना बैग बंद करते हुए बोली। टीपू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। भला आपकी बात भी टाली जा सकती है। वो उनके सर थपथपाकर उठ गई। ऊपर कमरे में वही सन्नाटा था। इससे पहले कि वो उस वीरानी को अपने अंदर उतारती, भाभी चाय लेकर आ गईं। उसे हैरत हुई। वो अमूमन अगली तरफ लॉन में अमीना लोगों के साथ चाय पीती थीं, उसे भी बुलाती थी, मगर उसका जाने को दिल नहीं चाहता था। बाहर तो तुम आती नहीं, इसलिए मैंने सोचा आज शाम की चाय तुम्हारे साथ ऊपर पी जाए। वो उसकी हैरत भांप चुकी थी। टेरेस का दरवाज़ा खोलने का इशारा करती वो बैठ गईं। मीज़ाब आज रोज़ की निस्बत काफ़ी फ्रेश लग रही थी। चाय के दौरान उनकी बातों को हूँ हाँ में टालने के बजाय तफसीली जवाब देती रही। एक दिन की थोड़ी सी मसरूफियत ने उसकी तबीयत में हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा की थी। वो बर्तन समेटकर घड़ी पर नज़र डालते हुए अरमान के वापस जाने का सोच रही थी। उसका जॉगिंग से वापसी का वक्त था। उसे कामयाबी की इत्तला भी तो देना थी। फिर रफ्ता रफ्ता अरमान की हिदायत के मुताबिक वो उसे कभी उसके लाख नाना करने के बावजूद शॉपिंग पर ले जाती, कभी अपनी किसी सहेली की तरफ। मीज़ाब इनकार करती रह जाती, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती थी। शादो से सफाई करवाने और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुस्तकिल तौर पर उसे दे दी थी। वो कभी अकेली बैठी होती तो खुद उसके पास चली जाती, कभी बच्चों को भेज देती थी या लाउंज में बुलाकर टीवी देखने पर इसरार करती। अमीना भी उसे कंपनी देने के लिए अक्सर आ जाती थी। भाभी को अगर कोई ज़रूरी काम होता तो किचन भी उसे सौंप कर चली जाती। वो सब खुश असलूबी से निपटा लेती थी, मगर उनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती थी कि उस पर काम का ज़्यादा बोझ ना पड़े। इस सब के नतीजे में मीज़ाब के मिजाज में और रवैये में वाज़ेह तौर पर तब्दीली आई थी। वो जो डिप्रेशन का शिकार होकर ज़िंदगी की रौनकों से मुंह मोड़ने लगी थी, एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आई।
اس خوشگوار تبدیلی کو بھیا نے بھی محسوس کیا تھا، ورنہ وہ تو ہر وقت یہ سوچ کر شرمندہ ہوتے رہتے تھے کہ وہ میزاب کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہے۔ اب بہتر اسے مطمئن دیکھ کر سب بہت خوش تھے۔